જીવ સટોસટનો પ્રેમ એક વિસ્ફોટક અહેવાલ જોવાનું ચૂકતા નહીં ટૂંક સમયમાં VR લાઈવ પર। જીવ સટોસટનો ખેલ। જી હા, એક વિસ્ફોટક અહેવાલ લઈને અમે આપણી સમક્ષ આવી રહ્યા છીએ। પાવર પ્લેનો વિષય છે આજે જીવ સટોસટનો ખેલ, પણ એવો પ્રકારની પ્રેમ સ્ટોરી, લવ સ્ટોરી 1942 કેટલાક લોકોએ જોઈ હશે, વર્ષો પહેલાં આવી ગઈ, એને પણ ક્યાંય પાછળ પાડી દેવી લવ સ્ટોરી 2016 લઈને અમે આપણી સમક્ષ આવ્યા છીએ। રાજસ્થાનના એક એવા શહેર કે જ્યાં આગળ આ પ્રકારનો વિચાર કરવાથી પણ કંપારી છૂટી જાય, એવા વિસ્તારનો એક યુવાન પ્રશાંત પટેલ એનું નામ છે। અને પ્રશાંત પટેલને એક છોકરી, એક યુવતી એ પ્રપોઝ કરે છે કે તું ગમે છે, તું ખૂબ સારો છે, અને એ અજમેર ખ્વાજા શરીફ દરગાહના મોહિદ્દીન ચિશ્તી પરિવારની એ દીકરી છે। અને નસરીન એની પાસે આવીને જ્યારે આ વાત કરે છે ત્યારે ક્ષણભર માટે એ અચંબામાં મુકાઈ જાય છે, અને કલ્પના પણ નહોતી આવી કે આ પ્રકાર, હા, પોતાને એક અહેસાસ થયો હતો કે આ યુવતી, આ છોકરી પોતાને ગમે છે, પણ કહેવાની હિંમત નહોતી। દીકરી અને આ દીકરો બંને પતિ પત્ની અત્યારે બન્યા છે। એ બંને એકબીજાના પરિવારો એક ફેમિલી ફ્રેન્ડ હતા, અને ફેમિલી ફ્રેન્ડ હોવાના કારણે એકબીજાના ઘરે આવવા જવાની અને અજમેર શરીફની દરગાહના રમીને જે મોટો થયો છે, પ્રશાંત પટેલને કલ્પના પણ નહોતી કે આ પરિવાર એક દીકરી સાથે મારી એક દિવસ જીવન સંગીની બનશે। અને એવી ઘટના, અસંભવ ઘટના અચાનક બને છે। ચિશ્તી પરિવાર, અજમેર શરીફ ચિશ્તી પરિવારની દીકરી નસરીન, એ બંને સમરીન, એ બંને એકબીજાના પ્રેમમાં પડે છે। સમરીન નામ એનું છે, નસરીન નામ નથી, સમરીન નામ બોલવામાં થોડી ટંગ સ્લીપ થઈ ગઈ, પણ જે સમરીન ત્યારે આ પ્રશાંતને લાઈક કરવા માંડે છે ત્યારે કલ્પના પણ નહોતી કે એક એવો મુકામ આવશે કે જ્યાં બંને એકબીજાના હાથ પકડીને ચાલવા માંડવું પડશે। સમરીનના પરિવારે એના પર પ્રેશર કર્યું, એની સગાઈ કરી નાખી અને નિકાહ પડાવવા માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી। સમરીન જીવનમાં બીજા કોઈને સહન કરી શકે એમ નથી, એ કલ્પના કરી શકે એમ નહોતી। એક દિવસ સવારે મોર્નિંગ વોક કરવા માટે નીકળે છે, અને ત્યાં એ પોતાના દિલની વાત, આંખમાં આંસુ ટપકે છે અને કહે છે કે પ્રશાંત, હું નિકાહ કરવા કરતાં હું સુસાઇડ કરી નાખીશ। પ્રશાંતે એ સમયનો હાથ પકડ્યો, આજ દિન સુધી પકડીને ચાલ્યો છે। એક સંઘર્ષમાં જીવન શરૂ થાય છે, ભાગ દોડ, એ હાથ હજુ છૂટ્યો નથી। મોર્નિંગ વોક કરવા ચાલવા નીકળેલા હજુ દોડતા રહે છે, ભાગતા ફરે છે, અને ક્યાંક સમાજના લોકો, પરિવારના લોકો તરફથી કોઈ જાતની ધમકીઓ મળી નહીં, પરંતુ સમાજના લોકો જ્યાં સહન નથી કરી શકતા, એક સાચો પ્રેમ નથી સ્વીકારી શકતા, એ લોકો દ્વારા ધમકીઓ મળવા માંડે છે। અને પરિણામે એ બંને જણા એટલા મેચ્યોરિટીથી નિર્ણય લે છે કે એક વખત આપણે સાથે રહીએ, લિવ ઇન રિલેશનશીપમાં રહીએ, અને પછી જો લાગે તો આપણે આગળનું સ્ટેપ ભરીએ। 3 મહિના લિવ ઇન રિલેશનશીપમાં રહે છે, અને દાહોદમાં રહીને એ લોકો હિન્દુ વિધિ મુજબ લગ્ન કરે છે। સમરીન હિન્દુ ધર્મ અંગીકાર કરે છે અને બંનેના વિધિવત શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી લગ્ન કરે છે। આ બંને અત્યારે આપણા VR લાઈવના સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે, અને પ્રશાંત પટેલ, સમરીન અને અમારી સાથે વરિષ્ઠ એન્કર એવી રુચિતા રાવલ પણ આજે છે। રુચિતા જી સર। મિત્રો, ફિલ્મોમાં જોતા હોઈએ છીએ, સિરિયલ્સમાં જોતા હોઈએ છીએ, અને બોલતા પણ હોઈએ છીએ કે પ્યાર કિયા તો ડરના ક્યાં, પ્યાર કોઈ ખેલ નહીં, અને જોઈને પછી એના એન્ડ સુધી આપણે આમ પકડી પણ રાખતા હોઈએ છીએ કે હવે શું થશે, હિરોઈનની લાઈફમાં હવે શું થશે, સ્ટોરી આમ જકડી રાખે છે। પણ હકીકતમાં જ્યારે આવા લોકો આપણી સામે આવીને ઊભા રહે છે અને એમની સ્ટોરી આપણી સાથે શેર કરે છે, કરવા માગે છે, અને મહત્વની વાત એ છે કે પહેલી નજરનો પ્રેમ કહેતા હોઈએ છીએ આપણે, એ લોકોએ કર્યો છે, ફીલ કરી રહ્યા છે, અને એ પ્રેમ મેળવવા માટે જે સંઘર્ષ એમણે કર્યો છે, એ સંઘર્ષ અત્યારે પણ અવિરતપણે ચાલુ જ છે।
તો આપણે એમના જ મોઢેથી સાંભળીએ એમના સ્ટ્રગલની વાત. ચાલો. जी प्रशांत, कैसे हुआ आपको ये एहसास कि ये समरीन है, ये उससे कुछ कुछ मोहब्बत हो गई है, उससे कुछ लगाव हो गया, कैसे आपको मालूम हुआ? हम 2016 के अंदर मिले। उसके बाद हम काफ़ी टाइम में मिलते रहे, बातचीत जी, होती जी, रही, जी। अच्छे से सब कुछ होता रहा। और मिलते मिलते बोलते हैं कि एक एहसास नहीं होने लग जाता कि नहीं यार ये इंसान बेस्ट है मेरे लिए, मैं इसके साथ अच्छा फील करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छी लगती थी, पसंद थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी कभी। फिर सडनली एक दिन आया 21 नवंबर 2016 कि एक क्या दिन था वो, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था कि मैं हम अपनी पर्सनल मैटर हम पब्लिकली पूछ रहे हैं आपको। 21 नवंबर को ये हुआ, इसने मुझे प्रपोज किया उस दिन। सीधा क्या प्रपोज किया? सडनली प्रपोज किया कि मतलब मैं कैसी लगती हूँ, अच्छी लगती हूँ। मैंने बोला हाँ अच्छी लगती हो। तो मैंने उसको एक बात बोली थी कि मैंने अच्छी लगती हो लेकिन मुझ में कुछ हिम्मत नहीं है बोलने की तुमसे, क्योंकि मैं थोड़ा इसी टाइप का था। बट सडनली इसने मुझे बोला कि मैं पसंद हूँ, तो फिर मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और क्या हम एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, एक रिलेशन के अंदर आ सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, ऑब्वियसली चलेगा। जब ये प्रपोज आपने प्रशांत से किया, जी घर में किसी को बताया पहले आपने, बाद में, या पहले कि ऐसा कुछ है? नहीं, घर में किसी को नहीं बताया था, बाद में बताया था एक फ्रेंड को। ओके। बाद में पता चल गया था। मालूम हो गया था परिवार वाले को? नहीं, परिवार में किसी को मालूम नहीं हुआ था। किसी को नहीं मालूम हुआ था। इसकी cousin जी sister थी रुचिता उनको। जी, आप मासी। नसरीन से, आप समरीन से पूछिए। समरीन, और अगर मैं भूल नहीं कर रही हूँ तो आपका एक और नाम भी है, अशरीन. ऐशरीन। ऐशरीन. ऐशरीन जो नाम है इनका, वो इन दोनों के नाम को मिला के बनाया गया है. ठीक है. तो नाम में भी जो अलगाव है वो इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें मंजूर नहीं है, तो इन्होंने अपना नाम बदल के ऐशरीन कर दिया है. जी। ठीक है. आपका और इनका इनका कैसे? आशु का ऐश लेकर और समरीन का लेकर दोनों को ऐशरीन कर दिया। तो फिर नाम भी एक कर दिए इन लोगों ने, तो फिर इनका जो प्यार है उन्हें रोकने वाला है, उन्हें तोड़ने वाला तो कोई क्या हो सकता है? अश्विन, आपने बताया कि प्रपोज आपने पहले किया. ठीक है. जनरली हम ऐसा देखते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि लड़की जो होती है वो शर्मीली होती है, पहले प्रपोज नहीं करती. ठीक है. जी। तो ऐसी कौन सी आपके अंदर फीलिंग आई कि आपने पहले उनको जाके प्रपोज कर दिया, या आपको ऐसे लगा कि ये जो पर्सन है मेरे लिए वो राइट है? अंदर से एक वो गट फीलिंग होती है ना कि ये जो है वो मुझे मेरे लिए. लगा कि बस यही है जो भी बेस्ट हाँ. मेरे लिए, सब कुछ मतलब हर चीज के लिए मुझे सही लगा, तो मैंने सामने जाकर देखा। हाँ, कन्विंस आपने कर जाकर दिया, हाँ। बोल दिया. जी। ठीक है. पहली नजर का प्यार, ऐसा बोल सकते हैं. जी। ठीक है. और प्रशांत जी, आपको भी ऐसी कोई फीलिंग थी? एलोय, एलोय पटेल, एलोय। हाँ जी, और ये फील था तभी। एलोय में बोलने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, बोलने की हिम्मत नहीं थी, फील था, फील करता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्योंकि फैमिली का डर, फिर समाज का डर. समाज का डर जी. कि ये मॉडर्न है, बोलूंगा आगे कुछ हो नहीं सकता, जी. तो नहीं, डर था उस चीज का। तब कहाँ जाके ये बात तो रुकी? आपने कैसे तय किया कि अब हमें ये घर छोड़ के चले जाना है? क्या आपकी ऊपर कोई प्रेशर था? आपकी सगाई हो गई थी निकाह पढ़ाने की, आप पर प्रेशर था निकाह पढ़ने के लिए? जी। क्या हुआ था? जी, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, वो मेरी मर्जी के बिना हुई थी। तो वो मर्जी के बिना हुई तो वो लड़के को आपने कभी बताया नहीं? मैंने उसको बताया कि मैं नहीं चाहती, मैंने उसको ये भी बोला कि मैं इस एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ, फिर भी उसने मना किया, प्रेशर बहुत किया। मैंने समझाया कि मैं नहीं करना चाहती तुमसे। घर में बात हुई थी कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ निकाह? जी, मैंने फैमिली में बोला था, मम्मी से भी। ओके। जी। मगर समाज का एक प्रेशर होगा। जी। जी। ओके, तब जाके आपने ये तय किया कि अब कुछ न कुछ हिम्मत बतानी पड़ेगी, जुटानी पड़ेगी। जी। ओके, तो मॉर्निंग वॉक में आप हर रोज जाया करती थी कि जी। उसी दिन ही गई आप? नहीं, मैं रोज जा रही थी, मेरे मामा के घर गई थी, मैं घर से नहीं गई थी, मामा के घर से रोज मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रही थी। तो फिर लास्ट टाइम मैंने आशु को, प्रशांत को बताया कि मैं आना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ से लेकर चलो।
फिर इसने मना किया कि नहीं, मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता, ये गलत है। तो मैंने इसको बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं कुछ कर नहीं सकती और दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। ओके प्रशांत, कौन सी बात आपको चुभ गई वो जब लड़की ने बताया कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी? आपने बाद में उस वक्त क्या आपके दिमाग में वो गड़मथल हो गई आपकी? कहाँ आप समझ सकते हैं, 5 साल से किसी लड़की के साथ रिलेशन में था, उसको स्टार्टिंग से ही अपनी वाइफ की तरह डील किया। कभी जैसे आजकल के टीनेजर्स करते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये रिलेशंस करते हैं, इस टाइप से डील ही नहीं किया। हमेशा से ही किया कि नहीं यार, फ्यूचर में बस वाइफ चाहिए तो यही चाहिए, इसके अलावा कोई और लड़की एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। तो बस जब इसने बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगी, ऐसा कुछ कर लूँगी, तो मैंने बोला यार इसको खोने से बढ़िया तो ये है कि इसको साथ ही ले चलते हैं। आपके परिवार में से किसी ने कोई इतराज जताया? नहीं, मेरी फैमिली में सब राजी थे, सबको पता था, इससे बात भी करते थे, मिलते भी थे हमेशा से। मेरी मदर फादर भी यही कहते थे, बेटा तुम पसंद हो और बहू बनो तो तुम ही बनो। मेरी फैमिली में कोई एतराज नहीं था। अब रुचिता आपसे कुछ सवाल करेगी, क्योंकि हमें ये जानने में इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोगों को भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि वहाँ से आप हाथ में हाथ मिला के चल तो पड़े, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ फिरे, कहाँ कहाँ आपने कैसी स्ट्रगल की? बिल्कुल, जैसे ही इनसे मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन था इन लोगों से यही पूछा कि आपकी जर्नी कैसी रही। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, सब लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है प्यार की, जो शुरू हुई, कैसी रही अब तक, क्या क्या सहा, क्या क्या हुआ? क्योंकि पैसे तो है ही नहीं हाँ, आपके हमारे पास, पास पैसे नहीं थे। घर से पैसे बिना निकले आप, जी। और आपके पास भी नहीं होंगे, नहीं थे। तो कैसे निकले आप? तो फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं आपसे, इस तरीके से इमोशनली आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, जैसे फैमिली हो गया, मम्मी पापा दीदी, इमोशनली सपोर्ट भी कोई नहीं, नहीं था। फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं। और इस अवस्था में ठीक है, आपने जो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और आज तक आप लोग एक दूसरे के साथ है यहाँ तक, तो वो कैसा रहा वो हम निकले थे जैसे कि अजमेर से बाइक पर हम निकले और फिर वहीं पर एक दिन स्टे किया था अजमेर में जी? फिर हमें सुबह पता चला कि हमारी फैमिली को पता चल गया है, तो हम वहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद हम ब्यावर वगैरह पूरे राजस्थान घूमे 3 दिन तक जी। फिर लास्ट में हम कोटा पहुँचे। फिर वहाँ से हमने वहाँ से कोटा से बस की टिकट ले ली जी। उसके बाद अहमदाबाद हम सुबह के टाइम आए जी। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે પાવર પ્લે કાર્યક્રમમાં જીવ સટોસટનો પ્રેમ. આપણે જોયો છે કે મેળામાં નાના હતા ત્યારે જતા હતા ત્યારે એક મોતનો ઘોડો હતો અને એમાં મોટરસાઇકલ ફેરવીને જે ખેલ કરવામાં આવતો હતો, જીવ સટોસટનો ખેલ, એ અચાનક બોલાઈ જતો હતો. પ્રેમ પણ ક્યારેક જીવ સટોસટનો હોય એ આપણે જ્યારે એ કિસ્સાઓ આપણી સામે આવે છે ત્યારે આપણને અહેસાસ થાય છે, અનુભૂતિ થાય છે કે ખરેખર પ્રેમ પણ એ જીવ સટોસટનો હોઈ શકે છે અને એ જીવ સટોસટના ખેલ કરતાં પણ ખતરનાક હોય છે. અહીં આપણે જે પ્રશાંત અને સમરીનને લઈને જે વાત કરી છે અને એ બંને જણા એ અલગ ધર્મ, ફેમિલી ફ્રેન્ડમાંથી બંને આવે, બંને પરિવારો સાથેના સંબંધો, પરંતુ ધર્મ અલગ હોવાના કારણે બે એકબીજાને પ્રેમ ખૂબ કરતા હોવા છતાં તેઓ એકબીજાને એ એકરાર કરતાં થોડા ખચકાતા હતા. અચાનક એક દિવસ સમરીન કહે છે પ્રશાંતને કે તું ખૂબ ગમે છે અને એ સાથે જ એ બંનેના પ્રણયની વાત આગળ ચાલે છે. આપણે જ્યાં અટક્યા હતા विराम पहला ये बात हम करीश. प्रशांत जी, ये बताइए कि आप घर से निकल गए, अजमेर से मोटरसाइकिल पे निकल के गुजरात आना क्यों पसंद किया? गुजरात ज़्यादा सेफ लगा आपको? और गुजरात आने में आपको मदद, आपके पास पैसे तो थे नहीं, तो आपने कैसे मैनेज किया? गुजरात आना पहली बात तो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमारा गुजरात में कोई रहता नहीं था.
हम किसी को जानते नहीं थे, कोई हमें नहीं जानता था, तो हमें सेफ लगा कि यहाँ पे हमारा कोई है ही नहीं, कोई फैमिली का फ्रेंड वगैरह या कोई भी रिलेटिव वगैरह कोई भी नहीं है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा गुजरात जाना। बाकी दिल्ली बॉम्बे यहाँ तो कोई ना कोई फैमिली वाले हैं। और गुजरात सेफ ज़्यादा लगा? गुजरात सेफ इसीलिए लगा, मेन रीज़न तो यही था कि कोई रहता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, तो बेस्ट ये रहेगा कि गुजरात चलते हैं, इसलिए गुजरात निकले। ओके। और लिव इन रिलेशनशिप के दौरान आप एक दूसरे को, हम तो पहले से ही जानते थे, दूसरे को जानने की ज़्यादा कोशिश की। हाँ, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था। सोचा बेस्ट रहेगा कि थोड़े दिन एक दूसरे का लिव इन के अंदर रह के भी देखें कि एडजस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ये ना हो कि आज शादी करें और कल को जाके फिर डिवोर्स के लिए डिवोर्स केस फाइल हो जाए, तो इससे बेस्ट है कि कुछ दिन पहले देखें कि क्या एडजस्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। सेफ भी लगा कि कोई हमें अलग नहीं कर सके। लिव इन में कोई अलग भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इंडिया के लॉ के हिसाब से लिव इन रिलेशन वैलिड हो चुका है इंडिया के अंदर, तो इसलिए बेस्ट लगा कि पहले लिव इन में रह के देखते हैं। और आप तो मेल ठीक है, लेकिन फीमेल ठीक है, एक लड़की के हिसाब से अगर सोचे तो वो होता है कि सिक्योरिटीज़ होती है, फ्यूचर में क्या होगा, हाँ चलो हमने ये स्टेप ले लिया, प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन अब जो साथ निभाना है, मतलब एक वो होता है हर एक लड़की के मन में कि सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए लाइफ में, ठीक है। वो कैसी आपकी सोच रही इस पूरे जर्नी को लेके, कि कहीं पर अभी भी वो डर है? कहीं आपको इनसिक्योरिटी फील हुआ? हाँ, मुझे प्रशांत के साथ रहकर तो कोई डर नहीं लगा, बस बाकी लोगों से है। जी। कैसे लोगों से? जैसे कि जो हमारे समाज वाले लोग हैं और बाकी के जो लोग हैं, उनसे है कि हमें अलग नहीं कर दे, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं करते कि हाँ। जिससे कोई ऐसे प्रॉब्लम- ये बताइए कि आपको ये शादी करने के लिए जी या हिंदू धर्म आपने अपनाया, जी। शास्त्रोक्त विधि से आपने शादी की, जी कहीं किसी ने कोई प्रलोभन आपको दिया, नहीं। पैसा दिया, धमकियाँ दी, कुछ दबाव बनाया, नहीं। कुछ ऐसा हुआ? नहीं, जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया और खुशी से किया। आप चिश्ती परिवार की बेटी हो जी और ये अजमेर ख्वाजा शरीफ बहुत ही पवित्र वो धार्मिक स्थल है। जी। आप वो परिवार से आप आती हो, जी तो खुदा को नजर समक्ष सामने रख के आप बोलती हो, खुदा के सामने रख के बोलती हो कि आप? आप खुश है? जी हाँ, खुदा को हर एक चीज़ को नज़र रख के मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ और मैं इसी के साथ, आप प्रशांत के साथ ही रहना चाहती हूँ लाइफ टाइम। प्रशांत ने जब आपको मंगलसूत्र पहनाया जी, तब दिल में क्या भाव उठा? अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जो चीज़ चाहते थे काफ़ी टाइम से वो आज हो गया। प्रशांत बहुत देर क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने तो प्रपोज ही पहले इन्होंने किया था, तो प्रशांत तो वैसे भी शर्मीले थे, तो फिर वो प्यार इतना कहाँ बढ़ा कि मंगलसूत्र तक आपकी हिम्मत बढ़ गई प्रशांत? डर था, मॉमडन फैमिली से है, जी इन लोगों की फैमिली भी थोड़ी इस टाइप में थी, जी। डेंजरस थी, तो डर भी था कि यार कुछ होगा तो क्या होगा, क्या आगे करेंगे? मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, बहुत सारे सवाल थे मन में। जी। और फिर हिंदू में, और मैं हिंदू और ये मुस्लिम, और ऊपर से ख्वाजा गरीब नवाज के खानदान से, जी तो उस चीज का भी बहुत ज्यादा Normal फर्क family पड़ता। नहीं है, खान नॉर्मल पठान। फैमिली होती, कोई थोड़ी-सी- नॉर्मल मॉमडन लड़की होती, खान पठान तो इस इतना फैमिली issue सब, भी तो नहीं इतना होता। इशू नहीं था, समझ में आता, इसलिए डर था। हाँ। लेकिन जब इसने खुद नहीं बोला कि अब मैं रह नहीं सकती, मुझे साथ में लेके चलो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी या जी। कुछ कर जाऊंगी, जी। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, ठीक है चलो। रुचिता, एक सवाल उठता है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रशांत ये समरीन को भगा के लेके आया या समरीन प्रशांत को भगा के लेके आई सर, है? मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को भगा के लेके आए। जी, समरीन क्योंकि- क्या कहना है आपको? मैं इसको भगा कर लेकर आई हूँ। मैंने अच्छा। बोला चलो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी, आप ओके, नहीं गए तो। आपके परिवार के साथ प्रशांत आपने बात की शादी के बाद और बोला कि मैंने शादी कर ली है, तो क्या रिएक्शन आया? मेरे पापा, मेरे घर पे सबसे बात हुई, पापा मम्मी वगैरह सबसे बात हुई, सबका एक ही रिएक्शन था कि बोले वो सब ठीक है, बट इनकी फैमिली ने FIR वगैरह कर रखी है वहाँ पे मेरी फैमिली के खिलाफ, तो उनका ये था कि बेटा जब शादी कर ली है तो इसको पुलिस स्टेशन लाके एक बार पेश कर दो ताकि ये FIR हट जाए, क्योंकि पुलिस वालों ने हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रखा है। जी इसीलिए हमने घर पे वीडियो कॉल भी किया था, और जो इनके पास का
पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे की वीडियो बना के भी उस पुलिस स्टेशन में, प्रभात जी हैं हेड कांस्टेबल है कोतवाली थाना अजमेर के अंदर, और उनसे उनको मैंने सेंड भी करी थी और इसकी बात भी कराई है। ओके, आपको ट्रेस करने की कोशिश हुई आप उनके परिवार के या समाज के लोगों से? हाँ, की ओर से जब मैंने घर पे कॉल किया था तो मेरी फैमिली का ये कहना था कि हम सबके फ़ोन ट्रेसिंग पे डले हुए हैं और वो तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए बेटा जहाँ पर भी हो अपनी लोकेशन मत बताना इस टाइम पे तुम कहाँ पर हो, और जल्द से जल्द इसको पुलिस स्टेशन लाके एक बार पेश करो और इसके बयान दिलवाओ। तो मैंने उनको यही कहा था कि मैंने आपको मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की फ़ोटोज़ और जो बाकी के इसके बयान के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैंने सेंड किए, तो वो आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएंगे और आप ये पहले थाने में पेश करिए, उसके बाद मैं इसको लाके एक बार बयान कराता हूँ। और उस वक्त आपको अपनी सेफ्टी से ज्यादा इनकी सेफ्टी का ख्याल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का ख्याल है, मुझे कोई इशू नहीं है आज अजमेर वापस जाने में, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं फ्यूचर में लेके जाता हूँ, मैं फ्यूचर में काम भी करता हूँ या मेरी जॉब के लिए भी बाहर जाता हूँ या किसी भी काम से बाहर जाता हूँ, अगर फ्यूचर में मेरे पीछे से इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा उस टाइम पे। और उस वक्त जो आपके दिमाग में जो जद्दोजहद चली होगी कि इसको कैसे मुझे संभालना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, समाज से आपने बोला कि फैमिली वालों का प्रेशर तो चलो एक बार सोच ले कि कम है या वो लोग एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, लेकिन जो समाज का जो इनके मदर फादर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लिटरली बहुत अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है। उन्होंने भी फ़ोन पे बोला तुम आ जाओ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है ना, वो डर भी है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हम दोनों ने उनका दिल दुखाया है, इनके मदर फादर का दिल दुखाया, इनकी इसकी फैमिली का बहुत दिल दुखाया, गलत किया हमने कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इसके। लेकिन आपने माफी भी मांग ली थी। हाँ, मैंने वीडियो भी जो सेंड की है उसके अंदर भी हम दोनों ने माफी मांगी है कि हमें प्लीज माफ कर दीजिएगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने इतने स्टेप उठाए। आज मैं बताता, ये अपने घर पे बताती कि हम दोनों 5 साल से रिलेशन में और शादी करना चाहते हैं, तो उनका ये रिएक्शन होता कि वो हिंदू है, हम मॉडर्न है, नहीं हो सकता। हमें पता था वो नहीं मानेंगे, ये रीजन था कि हमें लेना पड़ा। आप बयान लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन अगर गए भी अजमेर से, तो आप पर प्रेशर डाला जाए या उनके परिवार या समाज वाले उनको लेके जबरन ले जाएंगे, तब क्या होगा? आपने वो सोचा है आपने कि एक बार गए आप बयान देने के लिए, एफआईआर को हटाने के लिए आप गए भी, आपके परिवार पर जो प्रेशर आ रहा है, मगर आप गए और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तब क्या होगा? यही तो रीज़न है, इसी वजह से तो हम जाने से थोड़ा घबरा रहे हैं कि जाएं कहीं ऐसा ना हो ज़बरदस्ती कोई कुछ करे या लड़ाई झगड़े कर ले, तो इन सब चीज़ों से बहुत हुआ है। गुजरात पुलिस से आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांग रहे हो? क्योंकि गुजरात पुलिस अगर प्रोटेक्शन आपको देगी और वो लेके आपको साथ में जाएगी वहाँ पे बयान देने के लिए, तो आपकी सेफ्टी भी बनेगी। गुजरात पुलिस से इसके नाम से एप्लीकेशन देके प्रोटेक्शन मांगी थी, लेकिन गुजरात पुलिस का ये कहना था कि अभी आपके पास कोई स्थानीय ठिकाना नहीं है और ना आपके पास पैसे हैं, तो इस वजह से अगर अभी तो आप सिर्फ 100 नंबर पे कॉल करिएगा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी अगर जैसे आपके पास कोई ठिकाना होता है, रहने की जगह होती है, तो फिर हम आपको एक पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। गुजरात पुलिस ने हमें सपोर्ट किया इसमें, हम बिल्कुल उनके थैंक यू सो मच। जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तब तक अजमेर जाने में काफी दिक्कत आ सकती है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिक्कत आ सकती है, इस वजह से हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि पूरा रिस्क होता है उसमें। जी रुचिता जी, मैं यही सर जो बात सर ने आपसे पूछी कि प्रोटेक्शन के मामले में आप जो है वो ज़्यादा सतर्क है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जाए तो जाए कहाँ, ठीक है, मतलब नहीं तो घर पे जा सकते, नहीं तो किसी फैमिली मेम्बर्स के पास जा सकते, और ना ही जो समाज की बात है कि समाज तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मतलब जा सकते, वो तो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो उस बात को लेके कुछ सोचा है आपने? हमने ये सोचा कि हम कहीं ऐसी जगह पर न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग से कि जहाँ पर भी रहें दोनों साथ रहेंगे, फैमिली नहीं भी मानती है जी, और उसके लिए हिम्मत चाहिए होगी, है ना? जी। तो वो क्या सोचा है आपने? यही सोचा कि अब एक दूसरे के साथ हर कदम साथ रहना है, मतलब प्यार है तो सब कुछ है, सबके साथ फाइट कर लेंगे, हर एक इंसान से कर लेंगे हम, ठीक है, एक दूसरे का साथ है। जी सर, अगर एक दूसरे साथ है हम तो हम जिंदगी जी लेंगे,
किसी की परवाह नहीं है, मगर ये मुझे बताओ कि आप साथ में रहते हो, 2-3 महीने आपने वो आप साथ भी लिव इन रिलेशनशिप पे रहे, घर में वो भगवान की पूजा करते होंगे, आप भी उसमें शामिल होती हो जी और आप नमाज पढ़ती हो। जी, मेरे को कोई धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर धर्म ही सिखाता है कि प्रेम ही एक धर्म है। तो मैं मोहब्बत ही धर्म है। जी खुदा ही मोहब्बत है, और मोहब्बत ही खुदा है। खुदा है। ओके। जी तो आप ये भगवान की पूजा करते हो तो आप शामिल होती हो, आप मंगलसूत्र भी पहनती हो, जी। तो दिल में ये भाव पैदा अवश्य होता होगा कि ये धर्म सब एक ही है जी और कोई दुश्मन, कोई मोहब्बत के दुश्मन नहीं है कोई धर्म। ओके, तो कब तक आप ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे? आपकी पेशेंस कब तक होगी? क्योंकि बिना पैसे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये अगर सर्विस अगर मिल भी गई तो सर्विस जाएंगे तो आप घर पे अकेली रहेगी, तो भी वो एक डेंजर बात है। क्या आप करेंगे? मेंटली प्रिपेयर हो इसके लिए? जी मेंटली कि जो भी होगा मैं देख लूंगी। मैं देख लूंगी, हाँ, है ना सबको वो। फेस कर सकती हूँ कि हाँ भाई जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया हाँ। और खुशी से किया। मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर हो, जी। ठीक है। और प्रशांत जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेंटली तो प्रिपेयर्ड है ही, जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो फिर लड़ना तो है ही सबसे। अब पीछे आगे कदम उठाया ना, तो अब ये है पीछे कि तो हटने पीछे का नहीं सवाल नहीं हटना है। उठता। देखिए, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो प्यार है वो खुदा है, और हमारे घर में नमाज भी पढ़ी जाती है और मंदिर में घंटी भी बजती है, भगवान के दर्शन भी किए जाते हैं। तो इससे अच्छी तो बात हो नहीं सकती है सर कि एक ही घर में दो जो धर्म है वो एक साथ। मैंने इसको अभी तक भी नहीं रोका और मैं फ्यूचर में भी इसको फर्स्ट वर्ड ही ये था शादी से पहले भी कि मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा कि तुम हमें एक दूसरे की कास्ट से कोई प्रॉब्लम नमाज नहीं, मत क्योंकि पढ़ो दोनों या धर्म किसी यही और सिखाते हैं। तुम्हारा कोई भी त्योहार है तो उसको मत मनाओ। मनाओ, है ना। तुम्हें मेरा धर्म फॉलो करना है तो बस दिल से करना उसको फॉलो, और खुद के धर्म का जो तुम करती आई हो आज तक, तुम्हें दरगाह जाना है, क्योंकि मैं खुद भी जाता हूँ, मैं खुद भी दरगाह जाता हूँ, मैं मानता हूँ हर एक चीज को, तो मैं कभी कर ही नहीं सकता अलग। तो इसलिए ये है कि भाई तुम मेरा धर्म भी फॉलो करो और खुद का भी पूरा धर्म फॉलो करो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ना आज है ना कभी होगी, ये चीज है। ये गुजरात की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, जी क्या कहना चाहेगी आप गुजरात की जनता से? आपके लिए क्या दुआ करें? बस हम यही चाहते हैं कि हम फैमिली मान जाए, फैमिली मान जाए और हम हमेशा वापस जाएं, फिर वापस जाएं। फिर से अजमेर जाना है? हाँ, जल्द से जल्द फैमिली मान जाए और वापस जाना चाहते हैं, सबसे मिलना चाहते हैं, जानते गलती हुई है उसकी माफी मांगना चाहते हैं, 2 थप्पड़ भी मारेंगे तो गलती भी कहाँ खाएंगे। हुई है? प्यार करना प्यार में गलती गलत थोड़ी नहीं है। है। गलती नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं उनकी नज़र में हमने उनका दिल दुखाया है, उनकी नज़र में तो उनका दिल दुखाया है, तो इस वजह से बस माफी मांगना चाहते हैं। और गलत नहीं किया, बस ओके। थोड़ा सा तरीका। और ये इंटरव्यू पूरा होने के बाद आप फिर से दाहोद चली जाएगी? जी हाँ, दाहोद। हाँ, आप लोग? दाहोद। हम दाहोद में ही रह रहे हैं अभी, और दाहोद अभी हम दाहोद में ही रह रहे हैं, ओके हम वहीं जाएंगे वापस। ओके। तो आने जाने में दाहोद से अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से आप दाहोद जाएंगे, कहीं रिस्क नहीं लगता है आपको कि कोई रास्ते में आपको कोई अगर आप पर अटैक करे, कोई रिस्क लगता है आपको? रिस्क तो लगता लगता है, है, मगर अब क्या करें, मजबूरी भी तो है। अच्छा, ऑर्डर किलिंग की बातें आपने सुनी होगी, ये समाज वाले ऐसे लोग हैं जो ऑनर किलिंग तक जा सकते हैं? हाँ, सुना है। जा सकते हैं समाज के लोग? समाज के लोगों से ही तो मतलब डर लगता है? धमकी मिली हाँ। है आपको ऐसी कोई? ओके। समाज के लोगों से ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है, बाकी ना कि फैमिली? किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्योंकि आपका फ़ोन नंबर तो नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, नहीं, तो आपका कांटेक्ट कैसे करते हैं वो? किया है कभी किसी ने कि आपके फैमिली उनके फैमिली को जाके धमका रहे हैं वो लोग? मेरी फैमिली पे प्रेशर कर रखा है काफ़ी ज़्यादा कि कहाँ पर है, लेके आओ। उनका ये मानना है जो एफआईआर वगैरह करी है, मैंने 2-3 लोग हैं वहाँ पे मिलने वाले अजमेर में, जिनसे मैंने पता कराया, एफआईआर की कॉपी निकलवाई, मेरे फ्रेंड हैं कुछ उनसे, तो मैंने एफआईआर पढ़ी, तो उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि हम इसके ब्रदर हैं, उन्होंने करी है, छोटा भाई है इसका, उसने करी है। तो उसने ये लिखा है एफआईआर में कि हमें डर है या तो हमारी सिस्टर को कहीं बेच दिया गया है या फिर या फिर उसको कहीं मार के दफना दिया गया है।
और उसमें उन्होंने मेरी पूरी फैमिली का नाम लिखवाया है। हाँ। मेरा, मेरे फादर का, मेरी फैमिली में जो जो लोग हैं, जो जो मेंबर्स हैं, उन सबका नाम लिखवाया उन्होंने। ये आपने मैरिड लाइफ स्टार्ट की है, बहुत आगे की बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। बच्चे का नाम आप क्या कौन सा रखेंगे, हिंदू या मुस्लिम या दोनों मिक्स? दोनों हम मिक्स। मिक्स। और सोच कर रखा है। आप कुछ कहना चाहती थी अभी, कुछ मैसेज देना चाहती थी? हाँ, बस यही क्या बोलना चाहती जी, हूँ क्या मैं बोलना चाहती आप? कि कभी भी ऐसा कोई भी कपल्स है, अगर मोमडन हो या हिंदू हो, तो कभी कास्ट को नहीं देखें, जब भी देखें बस, क्योंकि जो भी धर्म है वो हमारा प्रेम है जी, इंसानियत को देखें, इंसानियत को, और फिर हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, ये देखना चाहिए। और जो फैमिली मेम्बर्स है उनको भी समझना चाहिए जी, ये बात। जी। ये नहीं देखना चाहिए कि ये मोमडन है या हिंदू है, हिंदू है। ये लव- देखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे खुद के राइट्स होते हैं। जी, ये हमारे राइट होते हैं, ना होना ही चाहिए। और लव स्टोरी 2016 की ये ही प्रेम कहानी, ये प्रेम कहानी की बातें सुन के आपको महसूस होगा कि सच्चा प्रेम जब होता है तब धर्म, जाति कुछ बीच में वो बाउंड्री नहीं आती है। અને આ સાથે જ એ પાવર પ્લે કાર્યક્રમમાં આ લવ સ્ટોરી 2016 અહીં પૂરી થાય છે અને બંને પતિ પત્નીને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને ખૂબ આનંદ ઉલ્લાસ સાથે તેઓ જિંદગી આગળ જીવી શકે અને એમને સધિયારો મળીને પોલીસ પ્રોટેક્શન જરૂર પડે તો ગુજરાત પોલીસ આપે એવી એક અપીલ સાથે અહીં ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ। જીવ સટોસટનો પ્રેમ, એક વિસ્ફોટક અહેવાલ જોવાનું ચૂકતા નહીં ટૂંક સમયમાં VR લાઈવ પર।